Hello, my dear friends of 11th Standard English Medium. Once again, welcome back to my class of English. And let me introduce you with the new lesson that we are going to discuss today from your textbook, Hornbill. The name of the chapter is Discovering Tut, the Saga Continues. It's a kind of a very interesting name actually. This article has been written by A.R. Williams. Okay, now this is a kind of a lesson which is connected directly with the history of Egyptian civilization. Okay, आपको शायद पता ही होगा कि Egyptian civilization से associated एक चीज है mummy. Okay, तो obviously mummy is a kind of series of tombs made by the Egyptian people, especially for the kings. Okay, kings की कब्रों को थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से सजा के बड़ी इमारतों के नीचे जो बनाए गए हैं, ठीक है, ऐसे टूम्स जो है पिरामिड शेप की इमारत को बना के उसके नीचे जो बनाए गए हैं ऐसे टूम्स वर्ल्ड फेमस है. So obviously we are referring to the Egyptian pyramids over here, and there are hundreds of such tombs made for the kings of the past of Egypt and the other people who belong to the royal families. Okay, किंग या तो फिर उसके खास आदमी जो थे, उनके खास कर्मचारी थे, या तो उनके जो चहीते थे, या तो उनके रिलेटिव्स हैं, ठीक है, या तो प्रिंस और प्रिंसेसेस, ऐसा सभी के टूम्स बनाए गए हैं जो अभी भी मौजूद हैं. और इन सब का अगर गिनती किया जाए तो वी कैन इजीली से दैट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ देम स्टिल प्रेजेंट. And they are still attracting the attention of thousands of tourists who are making visits to this outstanding place, Egyptian pyramid, जो कि इजिप्ट का southern region में situated है, ठीक है. And it has also acquired a place of one of the 7 wonders in the world. ठीक है, अब ये लेसन का जो एक खास कैरेक्टर है एक्चुअली, टट, which is actually the short name of King Tutankhamun. ठीक है, वो उन्होंने assume किया था वो नाम, basically that particular name King Tutankhamun जो है, that is directly relevant to one of the Egyptian god. उस जमाने में इस भगवान में लोग मानते थे, ठीक है, और उसी नाम को ये किंग ने assume किया था खुद अपने लिए, King Tutankhamun. But unfortunately this king, अब से मैं उनके नाम के लिए मैं सिर्फ टट इस्तेमाल करूंगा. Okay, he died at a very young age. In fact, at the age of a teenager, we can say. कुछ 19 या 20 years की एज में उनकी unfortunately suddenly death हो गई थी. Since his death, the mystery revolved around the death of this king. के कौन सा reason हो सकता है जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी? It remained unsolved, and it has still remained unsolved even today also. Okay, पहली बात तो ये है कि ये किंग का जो टूम है उसको डिस्कवर किया गया था 1922 में. Okay, and that was obviously the first time when we came to know कि ऐसा एक बहुत ही यंग एज में कोई किंग जो है, किंग टुटनखामन, उसकी डेथ हो गई थी और उसका tomb हमें मिला है. Nothing was done actually for that tomb, but the mystery raised the curiosity among so many people and so many archaeologists also कि ऐसी कौन सी वजह हो सकती है कि इतनी कम एज में उसकी मौत हो गई थी. Okay, historical evidences से इतना पता चला था ये किंग के बारे में कि he got married at a very young age. In fact, when he was a child of nearly 10 or 11 years of age, at that time he got married. और ये कहा जाता है कि उसकी still born 2 daughters भी थी. Still born 2 daughters. So this is kind of a new word for you. अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं इतना कह सकता हूँ कि still born babies वो होते हैं जो फिजिकली इतने ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं. यूं समझो कि कोई ना कोई फिजिकल डिफेक्ट उनके बॉडी में होती है. वो हाथ पैर या तो अपने ज्यादा नहीं चला सकते हैं, या तो अपाहिज है, या तो पहले से जन्म से लेकर उनको काफी वीकनेसेस है उनके बॉडी में.
सो ऐसी 2 स्टिल बॉर्न डॉटर्स ये किंग की हुआ करती थी. अनदर थिंग इज दैट in case if we lay focus on the beliefs of the Egyptian civilization, then we'll come across that most of the tombs possess kind of plenty of commodities which were in contemporary use at that particular time. जब ये civilization मौजूद था तो वो जो सारी चीजें इस्तेमाल करते थे वो सारे आर्टिफैक्ट्स वो इंसानों की डेथ के साथ उनकी कब्र में दफनाए जाते थे. द रीजन वॉज दे बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ, जिसको कह सकते हैं कि मृत्यु के बाद भी कोई एक जीवन होता है. ऐसी मान्यता में विश्वास करते थे उस जमाने के लोग. ठीक है कि आफ्टर डेथ भी एक लाइफ होता है और उस जीवन में चाहिए कुछ चीजें, ऐसा मान के उस जीवन में भी कोई चीजें कुछ चीजें जो है वो जरूरी होती है, ऐसा मान के उस सिविलाइजेशन के लोग किसी इंसान की मौत के बाद ऐसे आर्टिफैक्ट्स जो डेली लेवल पे जो इंसान जो मर गया है वो यूज करता था, ठीक है, उसको कब्र में दफना देते थे. सो इन केस ऑफ किंग टट ऑल्सो so many artifacts that he he was using when he was alive, they were also buried in the coffin, and the body was kept in a casket and it was gilded with gold. In fact, the whole face was gilded with gold, क्योंकि वो किंग था और भगवान के बराबर प्रजा उसको मानती थी, इसलिए गोल्ड से सजाया जाता है लिटरली. और कास्केट इतना सॉलिड तरीके से बनाया गया था कि बॉडी इतने सालों तक गाड़ देने के बाद भी वो सड़ा नहीं था. इन केस इफ वी ट्रैक द हिस्ट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर किंग, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मोर देन 3000 years. ये किंग जो है he lived in fact I would say 3300 before Christ. ये उसका समय था, तब ये किंग था. तो आज से अगर गिनती करें उसकी तो 3300 वो तो बिफोर क्राइस्ट है, बट इन केस इफ वी ऐड 2000 years मोर, ठीक है, क्योंकि अभी ऑलरेडी 21वां सदी चल रहा है तो उसके अंदर 2000 साल जोड़ने पड़ते हैं. तो द हिस्ट्री ट्रेसेस बैक टू मोर देन 5000 years. 5000 साल पुरानी ये बातें हो रही है अभी. So he lived precisely before 5000 years. अब हमारा जो माइथोलॉजी के साथ उसका कंपैरिजन करना है तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि in case if we believe the mythology of Ramayana that it happened around about the same time, ठीक है, भगवान राम से जुड़ी हुई जो रामायण की घटनाएं हैं वो हम ऐसा मानते हैं कि आज से 5000 साल पहले बनी थी. ओके, महाभारत जो है वो 3000 साल पहले हुआ था, तो ऑब्वियसली ये महाभारत से भी पुराना इसका हिस्ट्री है. बट सरप्राइजिंगली व्हेन द टूम वाज डिस्कवर्ड इन 1922, ओके, तो उसमें से बहुत सारी चीजें पता चली कि बॉडी जो है वो बिल्कुल वैसा है, गोल्ड से जड़ा हुआ उसका फेस, ओके, वो गोल्ड अभी भी वैसा ही मौजूद है, उस जमाने का गोल्ड. ओके, एंड इट वाज so it was solidified in such a way कि ये जो कास्केट था जिसके अंदर बॉडी गाड़ा गया था जमीन के लेवल से 24 फीट नीचे, वहां पे इस बॉडी को दफनाया गया था. ठीक है, तो it was solidified in such a way that it practically was not possible to drag the body out of the casket. कास्केट से हम बॉडी बाहर नहीं निकाल सकते थे, इतना प्रैक्टिकली वो इम्पॉसिबल था. ओके, सो ऑन द मिस्टीरियस लाइफ ऑफ किंग टट अ रिसर्च वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2005. 2005 यानी आज से 15 साल पहले उसके बारे में रिसर्च हुआ था. हालांकि काफी सारे लोगों ने उसका विरोध किया था, क्योंकि अभी भी इजिप्ट में ऐसे काफी सारे लोग मौजूद हैं जो ऐसा मानते हैं कि किंग, जिसको इजिप्शियन लैंग्वेज में फेरोआट कहा जाता है,
ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड लिखा है वो आपके लिए शायद नया हो सकता है। फेरोआ स्टैंड्स फॉर किंग और रूलर, ठीक है, वो इजिप्शियन लैंग्वेज में वो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो। तो अगर किंग के डेड बॉडी के साथ, जो कि शांति से हजारों साल से सो रहा है जमीन के नीचे, उसके साथ अगर कोई छेड़खानी करेंगे, ठीक है, तो बहुत भयानक तूफान आ सकता है और उसकी आत्मा जो है वो सबको परेशान कर सकती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल उसके खिलाफ थे लोग। लेकिन ऐसी गैर मान्यता को या तो ऐसे अंधविश्वास को या ऐसे सुपरस्टिशियस को इग्नोर करते हुए इजिप्शियन गवर्नमेंट ने, ठीक है, गवर्नमेंट के जो खास एक इंसान का नाम भी मैंने यहाँ पे लिखा है, जाही हवास, ओके, जो कि he was holding a particular position of being the Secretary General of Egypt's Council of Antiquities। जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उसकी देखभाल और मेंटेनेंस के लिए एक काउंसिल बनाया गया था, उनके हेड थे ये जाही हवास। उन्होंने मंजूरी दिया यहाँ पे रिसर्च करने के लिए, और मंजूरी इसलिए दिया बिकॉज द रिसर्चर, if we talk about the archaeologist Howard Carter, okay, जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, he was interested in finding out the facts related to the mystery of King Tutankhamun's death। ठीक है, कि इसकी डेथ कैसे हुई अचानक इतनी यंग एज में, वो रीजन कहीं पे हिस्ट्री में आज तक लिखा नहीं गया है, यानी कि that mystery has remained unsolved and there is a high possibility that he was murdered as a matter of fact, क्योंकि वो किंग थे, रॉयल फैमिली से थे, बहुत ही यंग एज उनकी थी, तो बीमारी तो कहीं पे उसकी नहीं लिखी गई है, तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि उनका मर्डर किया गया, ओके। और बीच में यानी कि 1922 में जब ये मम्मी या तो जो टूम है डिस्कवर किया गया था, उसके 40 साल के बाद जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये भी डिस्कवरी किया था कि उनके रिब्स के कुछ हड्डियां जो है वो मिसिंग है पहले से, यानी वो बिल्कुल थे ही नहीं। तो ऑब्वियसली देयर वाज अगेन अ हाई पॉसिबिलिटी दैट दिस किंग वाज could have become the victim of a heavy injury, ठीक है, और बहुत ही हैवी इंजरी होने की वजह से उसकी मौत हो गई हो। तो हैवी इंजरी तो ऑब्वियसली वॉर में हो सकता है, या तो किसी ने उनको पर्पसफुली इंजरी पहुंचाया है तभी हो सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर रिसर्च किया, लेकिन जैसा मैंने आपको आगे बताया वैसे इवन द kind of highest level of force also could not separate the body from the casket, इसलिए उसका कटिंग करना जरूरी है, ठीक है। लेकिन ऐसा बॉडी का कास्केट से या तो टूम से उसको बाहर निकाल के कटिंग करना, तो वापस उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, एंड इट वाज अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, एंड दैट एग्जैक्टली was the time when the people started opposing this ritual। ये सिस्टम सही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कई बार हमें ऐसा लगता है, especially when we study about the historical relevance with the present life, तो हिस्ट्री जब भी हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे सवाल ऐसे पैदा होते हैं कि गड़े हुए मुर्दे को सबसे पहली बात ये कि बाहर निकालने की जरूरत ही क्या थी। What was the reason why the body which has been buried down in the earth for thousands of years was to be dug out, no matter whether the mystery was associated with that body or not, okay? अगर उसकी मिस्ट्री अगर आप सॉल्व करना भी चाहते हो या नहीं सॉल्व करना चाहते हो, तो उससे भी क्या फायदा होने वाला है। These are the kind of facts that raise doubts upon the kind of archaeological discovery of this thing। लेकिन यहाँ पे एक क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने की बात थी, और हमारे पास आज ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसकी बदौलत हम इवन डेड बॉडी का भी सिटी स्कैन कर सकते हैं। आपने ये वर्ड सुना होगा सिटी स्कैन, बट व्हाट डज इट एग्जैक्टली स्टैंड फॉर? यहाँ पे मैंने उसका एक्सप्लेनेशन लिखा है। सिटी स्कैन बेसिकली स्टैंड फॉर कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। नाउ व्हाट इज दिस कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी? Computerized tomography stands for,
एक आप एक्सरे तो आप जानते ही होंगे कि एक्सरे इज बेसिकली अ काइंड ऑफ in use for the medical treatment, especially in bone injuries and all that. ठीक है, तो उसमें काफी सालों से हम एक्सरे को यूज करते हैं. But over here, X-rays which have been taken from various angles and when they are compiled together to make the virtual image of the entire body, then that particular thing is known as CT scan. ठीक है, बहुत सारे एक्सरेज को इकट्ठा करके अलग अलग एंगल से एक ही जगह के लिए लिए गए एक्सरेज को एक सैंडविच की तरह उसका पाइल अप करके, ठीक है, उसका स्कैनिंग करके एक वर्चुअल इमेज जो बनाई जाती है उसी को सिटी स्कैन कहा जाता है. और ये इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है सिटी स्कैन कि जिसकी वजह से उसकी बदौलत आजकल क्योंकि फॉरेंसिक साइंटिस्ट जो है उसका बहुत उपयोग करते हैं, खास करके मर्डर जैसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए. तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी सिटी स्कैन, क्योंकि अभी उसके वो टेक्नोलॉजी हमारे पास है मौजूद, तो दिस वाज द फर्स्ट इंसिडेंट इन द हिस्ट्री व्हेन सिटी स्कैन वाज परफॉर्म्ड ऑन अ डेड बॉडी. तो इस तरह से किंग टट जो है ही बिकेम द फर्स्ट किंग ऑफ द इजिप्शियन एम्पायर. ठीक है, जो उनकी मौत के हजारों साल पहले उनकी डेड बॉडी के ऊपर सिटी स्कैन किया गया ताकि पता चले, स्पेशली उनके लाइफ से रिलेटेड कुछ घटनाओं के बारे में हमें पता चले. वो कैसे दिख रहे थे वो पता चले. ऑब्वियसली वो कैसे दिख रहे थे वो तो पता हमें चला ही. ठीक है, इन केस इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट द इमेजेस ओवर द इंटरनेट ऑफ किंग टट, ठीक है, तो उसके वर्चुअल इमेजेस जो कि बराबर ऐसे ही लगते हैं कि बिल्कुल वैसा ही दिखता होगा ये किंग. ठीक है, ऐसे इमेजेस आपको मिल जाएंगे इंटरनेट के ऊपर. तो वो देख के आपको यही समझना है कि सिटी स्कैन टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसी इमेज उनकी क्रिएट की गई है. पहले की तरह नहीं कि कोई भी किंग का पिक्चर जो है वो ऐसे ही बस ड्रॉ किया जाता है और दिखाया जाता है कि ये किंग है वो किंग है. इट्स नॉट लाइक दैट. ओके, व्हेन द डिस्कवरी ऑफ द किंग टट्स डेड बॉडी वाज डन, तो उसका सिटी स्कैन किया गया उसके फेस का खास करके, और लिटरली वही इमेज बनाया गया जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं आज कि किंग टट अगर जब वो जिंदा होगा हिस्ट्री में तो बिल्कुल वैसा ही दिखता होगा. Because it is almost accurate as much as 100%, almost. ठीक है, इतना उसका accuracy है. तो वो चीज हुआ एंड बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स उसकी टूम से मिले जिससे हमें पता चलता है कि पुरानी इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन जो था वो कौन कौन सी चीजों में बिलीव करता था. ठीक है, ऐसा तो खैर हम सालों से जानते हैं कि डेड बॉडी के साथ जैसे किंग टट हर रोज के लेवल पे जो अपनी लाइफ में जो चीजें इस्तेमाल करते थे वो सारी चीजें उनकी कब्र में उसके डेड बॉडी के साथ बरी की गई थी और उसके फेस को गोल्ड से गाइलेट किया गया था और उसको गोल्ड भी बहुत पसंद था. ओके, एंड द किंग्स वर गिवन रिस्पेक्ट बाय एडोरिंग द बॉडीज विथ गोल्ड एंड कवर्ड विथ गोल्ड एंड कास्केट एज वेल. ठीक है, तो उस तरह से बॉडी उसका दफनाया गया था. अच्छे गहने उसको पहनाए गए थे, अच्छे कपड़ों में लपेटकर उसको बॉडी को इस तरह से बरी किया गया था. एंड स्पेशली मोस्ट ऑफ द आर्टिफैक्ट्स वर फाउंड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म व्हिच वाज हाईली सरप्राइजिंग कि उस वक्त इतने हजारों साल हो गए तो भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ. ऐसे ओरिजिनल सिचुएशन में आर्टिफैक्ट्स उसके आज मिल पाए हैं. यहाँ तक के वो जो एक माला पहनते थे गले में, ठीक है, वो भी इस तरह से स्पाइसेस से भर के उसको दफनाया गया था कि वो भी आज भी उसकी वही सिचुएशन में मौजूद है. एंड द बॉडी वाज आल्सो एडॉर्न्ड और लाइक इट वाज applied a certain kind of spices and olive oil and some other kind of preservative oils, because of which the body has also remained the same as it was when it was buried down under the earth. But unfortunately, the mystery surrounded to his death, the cause of his death was unfortunately
like it could not be found out by anyone else as yet. ठीक है, तो उनकी मौत जो है वो कौन सी रीजन से हुई थी, वो रीजन का तो एक्चुअली हमें नहीं पता चला, लेकिन एटलीस्ट काफी सारी बातें पुराने सिविलाइजेशन के लिए हमें उससे जुड़ी हुई हमें पता चलती है। अब उसका डिस्कवरी करते हैं तभी हमें पता चलता है, और डिस्कवरी करने के लिए हम आज की साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। एंड दैट्स हाउ वी फाइंड आउट द फैक्ट्स रिलेटेड टू द हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जिससे जुड़ी हुई कुछ गलत खबरें भी होती है, ठीक है, जिसका कोई एविडेंस नहीं होता है, बट साइंस हेल्प्स अस टू फाइंड द एविडेंस, दैट्स द रियलिटी। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर कोई दूसरा एग्जांपल हमें देना है ऑफ टॉपिक, तो वी कैन गिव द एग्जांपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके बारे में हिस्ट्री में हम पढ़े, ठीक है, लेकिन हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो साइंटिफिक फॉर्मूला से फाइंड आउट किए गए फैक्ट्स हैं, तभी हम उसके ऊपर बिलीव करते हैं। अदरवाइज पहले जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी उसमें कोई साइंस नहीं हुआ करता था। सो हिस्ट्री इज डायरेक्टली रिलेटेड विद साइंस। पहले से बस ऐसे ही बातें बहा दी है और वही हम पढ़ते हैं कि हाँ ऐसा था वैसा था, ऐसा नहीं। इनफैक्ट इन केस अगेन इफ वी टॉक अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि काफी पुराने समय का सिविलाइजेशन है, ठीक है, तो उसके बारे में पहले हम बहुत कम जानते थे, आज हम काफी सारी चीजें जानते हैं, तो वो साइंटिफिक डिस्कवरी की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। एंड साइंटिफिक डिस्कवरी अलाउज अस टू फाइंड आउट द फैक्ट्स रिलेटेड टू द हिस्ट्री इन एन एक्यूरेट मैनर। ओके, हिस्ट्री से जुड़ी हुई घटनाओं का हम अभ्यास करें वो जरूरी होता है, ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि वो हिस्ट्री, वो जो सारी फैक्ट्स हम पढ़ते हैं वो सही होना चाहिए, और साइंस जो है या टेक्नोलॉजी है वही उसको सही बता सकती है एक्यूरेटली। ओके ओके, आजकल हम बातों पे नहीं, हम साइंस पे ज्यादा विश्वास करते हैं। ओके, सिर्फ बातें तो कोई भी कर सकता है कि पहले के जमाने में ऐसा था वैसा था, बट व्हाट इज द एविडेंस ऑफ दैट? That is the main question we always have in our minds, and scientific discovery gives us an answer कि ये रहा इसका evidence, ठीक है। तो it was a very interesting chapter, डिटेल में काफी सारी ऐसी बातें शायद आपको मिल सकती है। ओके, चैप्टर को पढ़ते वक्त जो मैंने शायद नहीं बताई है आपको, but the main points I have tried to cover in the summarization discussion of this lecture. But I would strongly recommend to read, I would recommend you to read the chapter at least twice for you to understand the chapter. It is essential for you to read it at least twice. उसके बाद ही आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना है, ठीक है। In case doubt remains, you can directly contact me. Okay, thank you very much for your time, and that's it for today.